Hello guys, welcome back to another video of differentiation. Guys, in the last video we discussed about the basic formula of differentiation and some simple problems related to differentiation. Today we are discussing about the different theorems of differentiation, in which we discuss the chain rule, multiply rule, divide rule and addition and subtraction. After that, we will discuss about the different type of substitutions in differentiations, and then we solve some problem of differentiation. Just let's start the video. Theorem of differentiation. Theorem of differentiation. Actually, the first theorem of differentiation says if function fx plus minus function gx plus minus function hx plus minus zx dash dash dash. If we have two or more than two functions in addition and subtraction, so then what will zx, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो इसमें क्या करते हैं, जैसे आपने ये इस पिछले प्रॉब्लम करते समय मैंने बताया था, फिर से देख लीजिए कि क्या होगा अगर सारे फंक्शन अलग अलग होंगे और उनके में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो सिंपल आपको सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। अब बीच में जैसा साइन है वैसा का वैसा ही साइन रखना है, मतलब किसी दूसरे एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। यही कहता है, क्या कहता है कि इफ वी हैव two or more than two functions in addition and subtraction, then we will differentiate each function individually and the sign between them are put as it is. Clear? For examples, we have y equal to one trigonometric function sin x, y equal to one trigonometric function sin x plus one logarithm function log x minus 2 to the power x plus x to the power. This is algebraic function. This is also an algebraic function. This is logarithm function. This is trigonometric functions. So we have four different type of functions in this question. So when we differentiate these functions, so this side it's become dy upon by dx because we are differentiating y with respect to x, because x is a independent term in this question. So dy by dx. This now what will we do in this side? We will differentiate each function individually. हमें सभी को sin x, log x, 2x और x5 को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है अपने बेसिक्स फॉर्मूले को यूज करके, जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। और जिनके बीच में साइन है उनको एज इट इज पुट कर देना है। हमें किसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका, d sin x अपॉन में dx प्लस d log x अपॉन में dx, सबको इंडिविजुअली करना है। d2x अपॉन में dx प्लस dx की पावर 5 अपॉन में, ये सारे फंक्शंस का इंडिविजुअली अलग अलग क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब d sin x का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो sin x का क्या होता है, जिसका हो जाएगा cos x, log x का क्या होता है 1/i
टू की पावर एक्स का क्या होगा, तो ये ए की पावर एक्स हो गया, क्या होता है ए की पावर एक्स मतलब टू की पावर एक्स, लॉग ए मतलब लॉग टू, प्लस एक्स पावर 5 का क्या होगा 5x, दैट इज द आंसर। देखिए हमें कहता है पहले थ्योरम क्या कहता है, अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो सभी फंक्शन का हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं और साइन को एज इट इज छोड़ देते हैं। तो प्लस का है तो प्लस का रहेगा, माइनस का है तो माइनस का रहेगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। ये तो बहुत इजी सा थ्योरम था, पहले भी हमने क्वेश्चन करते समय ये यूज किया था। क्यों होता है, तो हमें फर्स्ट थ्योरम कहता है इसका, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड थ्योरम की। सेकंड थ्योरम हमें क्या कहता है, the second theorem says if a constant multiply with a function, if a constant multiply with a function, and when we differentiate this constant into functions, then when we do the differentiation, then this constant comes as it is. Here this constant comes as it is. This constant will not differentiate and becomes zero. जब एक कांस्टेंट और एक फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम नहीं करेंगे, उसको जीरो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। हम उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करके उसको जीरो नहीं करेंगे, हम उस कांस्टेंट को एज इट इज लिखेंगे और जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, मल्टीप्लाई और फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। क्लियर है, यह सेकंड रूल कहता है। फॉर एग्जांपल देखिए ज़्यादा क्लियर होगा आप सबको। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है मान लीजिए एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4 तो यहाँ पे एक 4 क्या हमारा एक कांस्टेंट है जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10x से मल्टीप्लाई में। तो जब हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, हम क्या करेंगे डी एफ एक्स अपॉन में डी एक्स करेंगे, तो हम क्या करेंगे इस फॉर्म्स को एज इट इज लिखेंगे। डिफरेंशिएशन किसका करना है हमें, डी टेन एक्स अपॉन में डी एक्स। तो ये हमारा क्या जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 4, अब 10x का क्या हो जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक 4 सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है, क्या जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। एम आई क्लियर, तो 4 सेक स्क्वायर एक्स ये इसका हो गया। तो इसको आप देख लीजिए, ये हमारा सेकंड थ्योरम हो गया। इसका बात करते हैं थर्ड थ्योरम की। जो थर्ड थ्योरम होगा वो क्या होगा उसको जल्दी से देख लेते हैं। अब बात करते हैं अपने थर्ड थ्योरम की। थर्ड थ्योरम को कहते हैं मल्टीप्लाई रूल। क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई। कुछ लोग इसको u इंटू वी फॉर्म भी कहते हैं, मतलब u मल्टीप्लाई वी। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होगा तब उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तब उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा। क्लियर, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जब ऐसा होता है क्या होता है, एक कोई भी हमें एफ एक्स मल्टीप्लाई में क्या है जी एक्स, इनका क्या करना है हमको डिफरेंशिएशन करना है, इनका क्या करना है हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा क्या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एफ एक्स एज इट इज, किसका डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन, जी एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस जी एक्स एज इट इज, किसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स का, जी एक्स एज इट इज एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन। क्लियर है, एफ एक्स एज इट इज जी डैश का डिफरेंशिएशन प्लस जी एक्स एज इट इज एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल
आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। क्या है? y इक्वल टू साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स। तो आप क्या करोगे? देखिए, एक फंक्शन तो हमारे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यह लॉगरिथम फंक्शन है, और दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई में। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल क्या था? हमारा फर्स्ट फंक्शन है ये, मतलब साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा? एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका? लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका? साइन एक्स। साइन एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका? लॉग एक्स का। लॉग एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका? साइन एक्स। क्लियर है इतना? इसको आप सॉल्व करोगे आपका क्या हो जाएगा? तो साइन एक्स का साइन एक्स ही हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज साइन एक्स से क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो हमारा क्या हो गया? साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस। दैट इज द आंसर। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ, थर्ड थ्योरम। तो मल्टीप्लाई रूल आप याद रखिएगा, 2 जब मल्टीप्लाई में, अगर 3 मल्टीप्लाई में हो तब भी हम क्या करेंगे? एफ एक्स। देख लीजिए, उसको एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से आपको नोट करके। अगर मोर देन 2 भी अगर मल्टीप्लाई में हो तब भी क्या होगा? तो इसी टाइप से उसका एक फॉर्मूला हो सकता है हमारा। क्या हो सकता है? फंक्शन है एफ एक्स इंटू में जी एक्स इंटू में एच एक्स। ये 3 फंक्शन है अलग अलग। तो आप इसमें क्या कर सकते हो? 2 को एफ एक्स और जी एक्स को लिख सकते हो, और तीसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर दो, थर्ड का एज इट इज। आप क्या कर दो? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, एच एक्स और जी एक्स, एच एक्स और जी एक्स। तो क्या होगा? 2 एज इट इज लगेगा, तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट थर्ड एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, सॉरी फर्स्ट थर्ड एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड थर्ड एज इट इज। तो ये ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी टाइप का रूल है, ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद हम आते हैं डिवाइड रूल या कोसेंट रूल जिसे कहते हैं। जब बात करते हैं डिवाइड रूल या कोसेंट रूल, वी डिस्कस अबाउट द डिवाइड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम डिवाइड रूल किसको क्या पढ़ेंगे? डिवाइड रूल, डिवाइड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको u बाई वी फॉर्म, u बाई वी फॉर्म कहते हैं। और u बाई वी फॉर्म के अलावा आप इसको क्या कह सकते हो? कोसाइन फॉर्म भी, कोई भी कोसाइन फॉर्मूला भी कहते हैं, u बाई वी फॉर्म क्या लगेगा? कोसाइन फॉर्म कहते हैं। तो डिवाइड रूल में क्या होता है? मान लो हमारे पास 2 फंक्शन है, एक है एफ एक्स, क्या है? एफ एक्स, दूसरा है जी एक्स, क्या है? एफ एक्स, दूसरा है जी एक्स। तो क्या होगा डिवाइड रूल में? जी एक्स नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, मतलब न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। पहले डिनोमिनेटर में क्या होगा? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और इसमें क्या होगा? डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंस।
न्यूमरेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल में क्या है कि मान लीजिए हमारा क्या है y इक्वल टू लॉग x अपॉन में साइन एक्स, y इक्वल टू लॉग x अपॉन में साइन एक्स। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका क्या करना है हमको डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स इसका करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स का स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे लॉग एक्स डी एक्स। क्लियर, लॉग एक्स डी एक्स माइनस लॉग एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे साइन एक्स अपॉन में, ये भी क्लियर हुआ बहुत अच्छे से। तो ऐसे हम कर सकते हैं। जब इसको हम आगे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x माइनस लॉग एक्स का एज इट इज साइन एक्स का क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन में एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में एक्स माइनस लॉग एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स। क्लियर हुआ इसमें? तो ये हमारा हो गया डिवाइड। हाँ हम बात करते हैं इसके बाद, इस डिवाइड रूल के बाद जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं चेन रूल। वो किसकी बात करने वाले हैं चेन रूल की। चेन रूल एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। तो चेन रूल को आप अच्छे से देखिए। चेन रूल कब काम आता है जब हमारा क्या हो फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन है, मतलब जब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात करें, जब किसकी बात करें हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात करें, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे हमें चेन रूल काम आता है। क्या आता है हमारा चेन रूल काम, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में चेन रूल काम आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए यह एफ जी एक्स, तो इस एफ का यहाँ पे क्या एक्स तभी ना हमारा इफेक्टिव फंक्शन होता है। तो इस एफ के लिए वो एक्स क्या होता है इंडिपेंडेंट टर्म, इस एफ के लिए ये जी एक्स क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट टर्म, एफ के लिए जी एक्स क्या रहेगा इंडिपेंडेंट टर्म। तो आपको मैंने बार बार बताया है कि डिफरेंशिएशन करते समय हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो जब हम इस एफ डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे हम क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स जी एक्स लिखेंगे, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखिए क्या होगा एफ डी एफ जी एक्स डी एफ जी एक्स अपॉन में क्या होना चाहिए यहाँ पे डी एक्स, लेकिन इस एफ के लिए इंडिपेंडेंट टर्म एक्स क्या है यहाँ पे जी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा जी एक्स। लेकिन क्योंकि जी एक्स खुद भी एक फंक्शन है, जी एक्स खुद भी एक फंक्शन है, तो इधर हमारा क्या होगा डी जी एक्स, ताकि इसको हम इससे काट दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जी एक्स का इंडिपेंडेंट टर्म क्या है एक्स, डी। तो जब तक हमारा ये एक्स जो लास्ट इंडिपेंडेंट टर्म है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सॉल्व ना आ जाए हो जाए तब तक हमें ये करते रहें। ये ठीक कैसे करेंगे, पहले हम एफ जी एक्स का रिस्पेक्ट में डी जी एक्स के, फिर डी जी एक्स का एक्स के। आपको क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल देखिए उससे ज़्यादा समझ में आएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमारा क्या है y इक्वल टू
साइन y इक्वल टू साइन लॉग ax प्लस साइन इक्वल टू लॉग ax प्लस। ठीक है, तो देखिए साइन अपने आप में एक फंक्शन है, लॉग अपने आप में एक फंक्शन है, और ax प्लस b ये भी एक फंक्शन है। साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग हमारा लॉगरिथम फंक्शन, x प्लस b हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। ये तीनों फंक्शंस अपने आप में भी डिफरेंशिएट हो सकते थे, लेकिन ये साइन का इंडिपेंडेंट टर्म क्या है, लॉग ax प्लस b। ये साइन किस इंडिपेंडेंट टर्म पे डिपेंड करता है, इस पे। ये लॉग किस इंडिपेंडेंट टर्म पे डिपेंड करता है, ax प्लस b पे। और ये ax प्लस b किस इंडिपेंडेंट टर्म पे डिपेंड करता है, तो x पे। तो जब तक हमारा डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ना हो जाए टोटल, तब तक हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि सबसे छोटा जो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट टर्म जो है वो क्या है, x है। तो x किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये साइन x लॉग ax प्लस b पे डिपेंड करता है, लेकिन ये लॉग ax प्लस लॉग जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ax प्लस b पे डिपेंड कर रहा है, और ये ax प्लस b x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये x जो है वही अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म है। तो हमें जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हमें किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, dy बाय dx। किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, dy बाय dx के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, d साइन लॉग ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो किस के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए इस पूरे का इंडिपेंडेंट टर्म क्या है, ये है, क्योंकि ये जो साइन फंक्शन है, हमारा फंक्शन यहाँ पे किसका हम कर रहे हैं, साइन का डिफरेंशिएशन करें। तो साइन के लिए इंडिपेंडेंट टर्म क्या है, लॉग ax प्लस b, ठीक है, इस पे ही तो ये डिपेंड कर रहा है। ये साइन जो डिफरेंशिएट होगा वो किसके फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा, d log ax प्लस b के रिस्पेक्ट में। क्लियर। अब ये d log a bx भी एक अपने आप में फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ये लॉगरिथम फंक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ax प्लस b पे। ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये हो जाएगा d ax प्लस b। क्लियर। अब ये ax प्लस b अपने आप में एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, ax प्लस b का भी डिफरेंशिएशन होगा। ये किसके रिस्पेक्ट में करेगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे, ये x के रिस्पेक्ट में करेगा। तो क्लियर है, इस तरह से ये साइकिल चलेगी। अब हम सबका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला मालूम है, तो फॉर्मूला हमको मालूम, हम सबका डिफरेंशिएशन इजीली अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो साइन का होता है क्या, कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस। अब बाकी जिस पे डिपेंड कर रहा था, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा था, लॉग ax प्लस b, क्या था, साइन का कॉस, साइन क्या हुआ, कॉस। बाकी जिस पे डिपेंड कर रहा था तो वो एज इट इज, इनटू लॉग का क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पे x हमारा क्या है, इस पे डिपेंड करता है, ax प्लस b, इनटू ax प्लस b का क्या हो जाएगा। तो देखिए ax में a कांस्टेंट है, एज तो एज इट इज रहेगा। x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि क्या हो जाता है, 1 प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, जो कांस्टेंट है, तो प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और a इंटू 1 भी a हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा होगा, तो इसको हम आप क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में ax प्लस b इंटू कॉस लॉग ax प्लस। इस टाइप से आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। तो ये भी बहुत इजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चेन रूल बहुत ही काम आता है, तो अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप एक बार रिवाइज करके इसको दोबारा देख सकते हो कि हमने क्या किया है। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और ये बार बार यूज होता है। एक क्वेश्चन हम और आपको चेन रूल पर करवा देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं चेन रूल का ही। हमारा मान लीजिए क्या है, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू लॉग
साइन 10x, log साइन 10x। तो देखिए जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए लॉग किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन 10x। ये साइन किस पे डिपेंड कर रहा है, 10x पे, और ये 10 किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो x किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी पे नहीं, x कुछ भी हो सकता है। तो सही मायने में हमारा इंडिपेंडेंट टर्म सिर्फ x है, क्योंकि x जो डालेंगे उसी पे साइन डिपेंड कर रहा है। तो साइन x की वैल्यू 10 डिपेंड कर रहा है, सॉरी, तो ये 10x आएगा, और इस 10x पे डिपेंड ये साइन कर रहा है, और ये साइन 10x पे ये लॉग कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट टर्म के रिस्पेक्ट में करते हो। तो फाइनली अगर हम पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जाए तो क्या हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx। तो इस पूरे फंक्शन के लिए ये x ही हमारा इंडिपेंडेंट टर्म है, ठीक है, बाकी किसी ना किसी पे डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर है? तो dy अपॉन में dx इक्वल टू डी, कौन सा फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, log साइन 10x अपॉन में अब देखिए ये लॉग फंक्शन कहते हैं, हम किस फंक्शन कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा है, log वाला। तो ये log वाला किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन 10x पे। तो ये जिस पे डिपेंड कर रहा है इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में होगा, ये हो जाएगा d sin x। क्लियर है? अब ये साइन 10x अपने आप में एक फंक्शन है, इसको हमें इनटू में लिखना पड़ेगा, साइन 10x। तो देखिए अब ये साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, ये साइन फंक्शन का, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, 10x पे। तो इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, d10x। और फिर इस d10x का भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो x पे डिपेंड करना है, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू log sin x 10x। तो log sin x का क्या हो जाएगा, log x का 1/x, तो log sin x क्या हो जाएगा, 1/10 sin x, 1/10 sin x। क्लियर है? इनटू में sin 10x का क्या हो जाएगा, sin 10x इसका आ जाता है cos sin 10x का क्या हो जाएगा, cos 10x। इनटू में 10x का क्या हो जाएगा, 10x का होता है sec स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा cos 10x अपॉन में 10 sin x इंटू sec स्क्वायर x। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपको और अच्छे वीडियो देखने को मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।